ہم اردو ادب کو آواز کی دنیا میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک اہم کام ہے۔ اس میں اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اکرام اللہ کی کہانی جنگل۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف سلیٹی رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں بس آ کر رکی۔ وہ لٹھے کی کلف لگی شلوار کھڑکھڑاتا ہوا نیچے اترا۔ کنڈکٹر نے نعرہ لگایا، چلو جی۔ چنگھاڑتی ہوئی بس آگے نکل گئی۔ دروازے میں سے نکل کر زمین پہ پڑتی ہوئی روشنی بس کے ساتھ ساتھ بھاگی جا رہی تھی۔ وہ اس کی پشت پر نظریں گاڑے دیکھتا رہا۔ لوہے کی سیاہ سیڑھی چھت تک پہنچتی تھی۔ پچھلے شیشے میں سے اس کے ساتھی مسافروں کی میلی کچیلی پگڑیوں اور بجھے بجھے رنگوں کے کھیسوں میں چھپے سروں کے پچھلے حصے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب سامنے تکے جا رہے تھے اور اچھل رہے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے اکیلا کھڑا تھا، بس نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ فضا میں کچھ دھول اور کچھ دھواں بکھرا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے دور تک سیاہ فصیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایک افق سے دوسرے افق تک جنگل بازو کھولے کھڑا تھا۔ اس دھندلکے میں جنگل آسمان تک اٹھی ہوئی کالی سیاہ دیوار معلوم ہوتا تھا۔ جنگل کی طرف تیزی سے اڑے جاتے پرندوں کے سوا پورا منظر ایک بہت بڑی ساکت و جامد تصویر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک درخت کی جڑ میں پیشاب کیا اور گٹھری اٹھا کے کندھے پر رکھ لی، جس میں اس کے ماں باپ بھائیوں اور ہونے والی بیوی کے لیے جذبات کا مادی اظہار بند تھا۔ وہ سڑک کی ڈھلوان سے اتر کر پگڈنڈی پر ہو لیا۔ 1 گھنٹے میں جنگل کے کنارے پہنچ جائے گا، پھر 2 گھنٹے میں پورے جنگل کی چوڑائی عبور کر کے باہر نکلے گا تو سامنے اس کا گاؤں ہوگا۔ کتے بھونکنے لگے۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکانوں کے ہیولے یکدم اندھیرے میں سے نکل کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ جنگل میں سے گزرنا ہی نہیں پڑا۔ سنسان گلی کے دونوں طرف بند دروازوں کی قطاریں سمن بکمن کھڑی تھیں۔ ہر طرف اداسی برس رہی تھی۔ وہ ان کے درمیان سے ششدر گزرا جا رہا تھا۔ زمین پر پھیلی ہوئی مردہ دھول میں اس کے پاؤں دھسے جا رہے تھے۔ جہاں اس کے پاؤں پڑتے وہاں سے دھول ذرا سا سر اٹھا کے اس کے پیروں کے تعاقب میں اٹھتی اور پھر ہوا میں معلق رہ جاتی۔ ان روٹھے کھڑے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی اس کے گھر کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں نہ کسی ایک کو کھٹکھٹا دے۔ گاؤں کے چوک میں دکان کھلی تھی۔ اندر ٹمٹماتے دیے کی لو میں ایک سایہ سا بیٹھا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ صدیوں سے یوں ہی خاموش سر جھکائے بیٹھا ہے۔ وہ زندہ تھا یا محض ایک لاش تھی، اس کے بارے میں اتنے فاصلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے سوچا، ذرا جھانک کے دیکھ لوں کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہوا، مگر یہ سوچ کے آگے بڑھ گیا کہ اگر زندہ ہے تو مر جائے گا اور اگر مر چکا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ گاؤں کے آخری گھر کے قریب پہنچا تو سامنے سفید کھیس میں لپٹا ہوا ایک آدمی چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزر گیا تو اس نے آواز سنی، اجنبی اجنبی۔ اس کے پاؤں رک گئے اور وہ پلٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے 10 گز کے فاصلے پر وہ آدمی بھی اس کی جانب منہ کیے کھڑا تھا۔ مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ ہاں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جنگل کے پار۔ کوئی اجنبی دن کی روشنی میں بھی اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکتا۔ تم رات میں اسے پار کرنا چاہتے ہو؟ میں اجنبی نہیں ہوں، میں بچپن سے اس کے پتے پتے سے واقف ہوں۔ دیکھو، جنگل سے پہلے یہ آخری گاؤں ہے۔ اس کے بعد اور کوئی گاؤں نہیں آئے گا جہاں تم رک سکو۔ رات ٹھہر جاؤ، صبح اپنے مقام کی طرف چل پڑنا۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، آج تو تھوڑی دیر میں چاند بھی نکل آئے گا۔ راہ ڈھونڈنے میں دقت نہ ہوگی۔ یہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ میرے لیے نہیں، میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ ضد مت کرو، میری بات مان جاؤ۔ وہ اس کی بات کو انسنی کر کے کھیتوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی پگڈنڈی پہ چلتا رہا۔ سفید کھیس والا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس نے آخری بار اسے واپس بلانے کے لیے پکارنا چاہا، مگر وہ جرأت نہ کر سکا۔ وہ اس بے پناہ لمبی دیوار کے نیچے کھڑا تھا۔ پگڈنڈی بل میں گھستے ہوئے سانپ کی طرح جنگل میں گھسی جا رہی تھی۔ وہ وہاں پہنچ کے رک گیا۔ اتنی لمبی دیوار اب قریب ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں صرف چند گز تک نظر آ رہی تھی۔ سامنے خاموش کھڑے کالے کالے درختوں کے موٹے موٹے تنوں کے اوپر شاخیں گتھم گتھا ہو رہی تھیں۔ سیاہ پتوں کے بادل امڈے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا، 3 سال کے عرصے میں نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ میں پچھلے گاؤں کو واپس چلا جاؤں۔ اس نے پاؤں سے سخت پگڈنڈی کو ٹٹولا۔
उसके पांव मुंह जोर घोड़े की तरह बेकरार थे। इस राह के पुराने महसूसात उसे याद आ गए। वही रास्ता तो है, मैं इसे खूब पहचानता हूँ। ये पगडंडी जो यहाँ से दाखिल हो रही है, पहले भी जंगल में यहीं से दाखिल होती थी और फिर सीधे सीधे जंगल से बाहर निकल जाती थी। यहाँ तक तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। खैर छोड़ो इस किस्से को। तब्दीली आई हो या ना आई हो, मुझे बिला वजह खतरा मोल लेने से क्या हासिल। रात में जो चीज़ जंगल से पार ले जाया करती थी वो छठी हिस्स थी। मैं जंगल में दाखिल होकर देखता हूँ कि वो जागती है या नहीं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा सा चल के देखूँगा। उसने गठरी कंधे से उतार कर हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से शाखें हटाता हुआ जंगल के अंदर पहुँच गया। उसने एक लंबी सांस भरी। दरख्तों की बेहद हल्की खुशबू और वही नमालूद बोझल बोझल हवा। बाहर भी अंधेरा था, मगर तारों की रोशनी में ऊंची ऊंची खड़ी फसलों और चटियल मैदान में तमीज़ हो सकती थी। झाड़ियां अपने कूल्हों पर उकड़ू बैठे कुत्तों की तरह मालूम होती थीं। दरख्तों की सियाह छतरियों के खुतूत भी नजर आते थे, मगर जंगल के अंदर तो इतना शदीद अंधेरा था कि वाकई हाथ को हाथ सुझाई न देता था। उसने मुंह ऊपर उठा के गर्दन घुमा फिरा के देखा कि कोई सितारा नजर आता है या नहीं। कुछ भी नहीं, महज तारीकी ही तारीकी थी। एक न खत्म होने वाला अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। वो उसी तरह मुंह उठाए सितारे की तलाश में चंद कदम और आगे चला गया। हाँ, वो रहा। एक सितारा ऊपर बुलंदियों में टिमटिमा रहा था। उसकी रोशनी वक्फों से यूं घटती बढ़ती थी कि गुमान होता था वो एक दिल है और दूर कहीं खामोशी से धड़के जा रहा है। उसके बाकी साथी कहाँ गुम हो गए? गुम कहाँ होना था? यहीं कहीं पत्तों की ओट में होंगे। और सितारे तलाश करूं? वो उसी तरह मुंह उठाए कुछ और आगे बढ़ गया। पहले कदम पर ही वो सितारा गुम हो गया। वो चलता गया, चलता गया। दरख्तों की बुलंद होती हुई चोटियों के बीचों बीच एक जगह दो सितारे करीब करीब जमे धड़क रहे थे। छठी हिस्स किस तरह मेरी रहनुमाई करती हुई मुझे यहाँ तक ले आई है। ऐन पगडंडी के ऊपर ऊपर चला आया हूँ। मेरे पाँव इन राहों को भूले नहीं हैं। इसी तरह चलता हुआ जल्द अपने गांव पहुंच सकता हूं। तो फिर पिछले गांव जाने से क्या हासिल? मैं यहां तक कितना फासला तय कराया हूं? शायद 1 फरलांग, उससे कम या कदरे ज़्यादा। मुमकिन है 1.25 फरलांग हो या 1.5 भी हो गया हो, तो कुछ कह नहीं सकता। कुछ इतने ही फासले पर बड़ का एक दरख्त है जो बहुत बड़ा है। वो पगडंडी से कोई 40 कदम हटकर दाएं तरफ है। उससे बड़ा दरख्त इस जंगल में और कोई नहीं। मैं लड़कपन में साथियों समेत लकड़ियां चुनता हुआ यहाँ तक पहुँच जाया करता था और हम दिन में उसकी घनेरी शाखों में आंख मिचोली खेला करते थे। वो कितना मजबूत, कितना मुस्तहकम, ज़मीन के सीने में पाँव गाड़े एक कोहे वक़ार बना खड़ा होता था। वो अब तक होगा भी या नहीं, उसे देखना चाहिए। अभी तो शाम ही है, कौन सा ऐसा ज़्यादा वक्त हुआ है। उसने पगडंडी को अपने पाँव से अच्छी तरह महसूस किया ताकि उसकी मुकम्मल पहचान उनमें जज्ब कर ले। फिर दाएं तरफ पूरा घूमा, पाँव जोड़े और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। बदन को अपने आप में जांचा, तोला और एक लंबा सांस लेकर नाक की सीध में कदम उठाया, जिस तरह ज़मीन की पैमाइश करते वक्त कदम उठाते हैं, और गिना। एक दायां हाथ सामने फैला लिया और कदमों की गिनती करता हुआ बड़ के दरख्त की तलाश में चल पड़ा। 6-7 कदम गया होगा कि उसका हाथ एक दरख्त से टकराया। खुरदुरी खाल पर हाथ फेरते हुए और उसके ऊपर से चक्कर काटते हुए वो उसी एहतियात से एक एक कदम उठाता, दरख्तों से बचता बचाता 50 कदम चलाया। उस अजीम दरख्त का अभी तक कोई निशान न था। जैसे जैसे पगडंडी से दूर हटता चला जा रहा था, दरख्त घने होते चले जा रहे थे। उसके सामने तेजी से फिरता हुआ दायां हाथ अब कदम कदम पर किसी दरख्त से टकराता। इस एहतियात के बावजूद उसका बायां कंधा किसी न किसी दरख्त से टकरा जाता और उसे यूं महसूस होता जैसे किसी ने दानिस्ता उसके बाएं कंधे पे हाथ रख के बेदर्दी से धक्का दे दिया हो। उस बड़ के इर्द गिर्द तो दूसरे दरख्त नहीं थे। वो तो एक छोटे से मैदान पर तन्हा छाया हुआ था। उसके मोटे मोटे टहनों से लटकते हुए रस्से से हवा में लहराते रहते और उनमें से कई ज़मीन में धंस के उसके भारी बाजुओं को सुतूनों की तरह संभाले होते। उसे हम बड़ की दाढ़ी कहते थे। पकड़ने वाले साथी से बचने के लिए हम किस तरह उस दाढ़ी के रास्ते ऊपर पहुंच जाया करते थे और नीचे उतर आया करते थे। अगर मैं सही समत में आ रहा होता तो अब तक उसके पास पहुंच चुका होता। इसका मतलब है कि मैं पगडंडी पर बहुत पहले दाएं तरफ मुड़ गया।
अब अगर बाएं तरफ मुड़कर पगडंडी के मुतवाज़ी चलूं तो मुमकिन है कि बड़ मिल जाए। मैं कुछ दूर तक उसे तलाश करूंगा, वरना पगडंडी की तरफ लौट जाऊंगा और वहां से अपने गांव रवाना हो जाऊंगा। उसने रुख बदल लिया। पगडंडी तो बिल्कुल सीधी जाती है ना। जब भी चाहूंगा बाएं तरफ मुड़ के 60 कदम गिनूंगा और पगडंडी पर पहुंच लूंगा। वो चला जा रहा था कि दफतन उसे ठोकर लगी और वो बेबस होकर कीचड़ भरी जमीन पे गिरा। गठरी कहीं लुढ़क गई। सामने फैले हुए हाथ को तो कुछ नजर नहीं आया। यहाँ एकदम कीचड़ आ गई थी। उसमें फिसल गया। नहीं, पाँव किसी सख्त चीज से टकराया था। उसने दोनों हाथों से जमीन को टटोल के देखा। कसाई के गोश्त काटने वाले लकड़ी के ब्लॉक जितना बड़ा और उसी तरह साफ और हमवार सतह वाला कटे हुए दरख्त का टुंड। गठरी ढूंढने के लिए कमर दोहरी करके जुलाहे के ताना बुनने के अंदाज में चंद कदम घिचिक घिचिक करता कीचड़ में दाएं तरफ गया, फिर बाएं तरफ चला आया, फिर एक कदम सामने की जानिब बढ़ाकर उसी तरह दाएं बाएं घूमा। गठरी ना मिली। एक कदम और आगे बढ़ा के ताना बुना। वो उसी तरह 4-5 कदम आगे चला तो कीचड़ में लथपथ गठरी उसके हाथ से टकरा गई। गठरी की तलाश में कई दरख्तों के टुंडों पर उसका हाथ फिरा। अच्छा, तो जंगल के इस हिस्से में बहुत से दरख्त काट दिए गए और बाद में पानी दिया गया होगा। उसने ऊपर मुंह उठा के देखा। सितारों से जुड़े सियाह आसमान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तना हुआ था। ये तो अच्छा खासा मैदान है। इस मैदान के बाद जो वो दरख्त हैं उनमें से गुजरूं तो बड़ का दरख्त आएगा। यहाँ तो चलना नामुमकिन है। भला बड़ के दरख्त में भी क्या रखा है। यूं ही वक्त ज़ाय किया। अब तक आधा सफ़र तय कर चुका होता। वो वापस दरख्तों में आकर पगडंडी की तरफ मुंह करके गिनती करते हुए चल पड़ा। 50 कदम चलकर उसने एहतियातन ज़मीन पाँव से जांची। नहीं, वही फुसफुसी ज़मीन जिसमें कहीं कहीं उगे हुए घास के ऊंचे खड़े तिनके उसकी शलवार से घिसिर घिसिर आवाज़ निकाल रहे थे। अब वो हर कदम निहायत मोहतात तरीके से रखता, ज़मीन को जांचता परखता, फिर दूसरा कदम उठाता। उसी तरह 60 कदम पूरे करने के बाद उसने पगडंडी को पैरों से तलाश किया। नहीं, ये तो पगडंडी नहीं। उसने मज़ीद तसल्ली करने के लिए हाथों से ज़मीन को टटोला कि शायद पाँव धोखा खा रहे हों। जंगल की ज़मीन थी और वही उसकी नाक में घुसते हुए घास के लंबे लंबे तिनके में जिस तरह 60 कदम उठा के गया था, पूरी एहतियात से उसी तरह 60 कदम उठा के वापस आया हूँ। पगडंडी कहाँ चली गई? शायद मैंने वापसी पर लंबा रास्ता इख्तियार किया है, इसलिए 10-15 कदम और आगे तक देखना चाहिए। नहीं, पगडंडी का कहीं निशान न था। वो वापस आ गया और पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया। जगह जगह दायरे की सूरत में चक्कर लगा के देखा, मगर पगडंडी न मिली। वो थक हार के सोचने लगा, मैंने उसे छोड़ा ही क्यों था? बल्कि पहली बात तो यह है कि मैं जंगल में घुसा ही क्यों? इस वक्त पिछले गांव में मज़े से पड़ा सो रहा होता। खैर, पगडंडी कहाँ जाएगी और मैं कौन सा ऐसा दूर जंगल में निकल आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 फरलांग अंदर होऊंगा। ये तो किनारा ही है। पगडंडी ना भी मिली तो भी मैं दरख्तों के बीचों बीच चलते हुए बाहर पहुँच सकता हूँ। जूते बहुत बोझल हो रहे थे। उसने खुश्क लकड़ी तलाश करके उनके तलवों से कीचड़ उतारी। फिर उसने गठरी और कपड़ों पर कीचड़ तलाश करके उतारने का इरादा किया, लेकिन ये सोच के तर्क कर दिया कि कहाँ कहाँ से कीचड़ उतारूंगा। छोड़ो, जैसे है रहने दो। थोड़ी देर आराम करने के ख्याल से उसने गठरी से टेक लगा ली। उसकी आंख लग गई। कुछ पता नहीं कि वो कितनी देर सोया रहा। उसके करीब गीदड़ों के गौल ने अपनी लंबी लंबी चीखों से जंगल सर पर उठाया तो वो उठा। ओह, गीदड़! उसके होठों पर नादानिस्ता एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इस जंगल में गीदड़ों के सिवा और है ही क्या? दरख्तों के ऊपर चांदनी का उजाला फैला हुआ था। मीठी मीठी रोशनी पत्तों से छन छन कर आ रही थी। चांदनी देखकर उसे प्यारा प्यारा ताज्जुब, मुसर्रत और इत्मीनान हुआ। अफरा तफरी में उसके जहन से ये बात तो यकसर निकल गई थी कि आज रात चांद को भी निकलना है। सामने चंद कदमों के फासले पर पतली दुबली चटियल पगडंडी चितकबरे सांस की तरह पड़ी चमक रही थी। अरे, इसके ऊपर से तो मैं 20 मरतबा गुजरा हूँगा, लेकिन हैरानी है कि मुझे पता ही न चल सका कि यही तो वो है जिसकी तलाश में भटकता फिर रहा हूँ। मेरे पाँव उसके लम्स के तासुर को क्यों कर भूल गए? इसकी पहचान से क्यों कर गाफिल हो गए?
गठरी उठाकर उसने कंधे पर रखी और पिछले गांव की तरफ लौट पड़ा। अब वहां चल के सोता हूँ, कल सूरज निकलने पर अपने गांव को रवाना होऊंगा। वो सफ़ेद खीस वाला जो मुझे ठहराने पर इसरार कर रहा था, इस वक्त अपने घर में पड़ा सो रहा होगा। अब उस गांव का हर बंद दरवाज़ा खटखटाकर कैसे पूछूं कि शाम के अंधेरे में गांव के उस सिरे पर कौन सफ़ेद खीस वाला मुझे मिला था। शाम में खुदा मालूम इस गांव के कितने लोग सफ़ेद खीस लिए उस सिरे तक गए होंगे। उसका तो चेहरा भी मुझे याद नहीं, याद भी कैसे रहता। उसका आधा छुपा हुआ चेहरा अंधेरे में एक सपाट सियाह तख्ती थी। वैसे सैकड़ों दरवाजे खटखटाए भी क्यों कर जा सकते हैं। अच्छा, तो फिर मस्जिद में ठहर जाऊंगा, लेकिन मस्जिद के दरवाजे को मुअज्जिन ताला लगाकर गया होगा, जो वो सुबह की नमाज के वक्त खोलेगा। उस वक्त दरवाज़ा खुलने का मुझे क्या फ़ायदा होगा। कपड़े भी गीले हैं, सर्दी भी बढ़ती जा रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, भूख से पेट में आग सी लग रही है। मेरी कितनी सारी ज़रूरियात हैं, ये सब उस जगह पर कौन पूरा करेगा। अगर किसी ने भी दरवाज़ा ना खोला तो और कुछ नहीं तो रात भर उस गांव के कुत्ते जान को आते रहेंगे। तो फिर क्या अपने गांव को वापस चलूं? नहीं नहीं, उस गांव वाले इतने संगदिल तो नहीं हो सकते कि एक मुसाफिर को रात में पनाह ना दे सकें। जिस घर में रात को ठहरूंगा, अगर उसका मालिक 500 रुपयों की खातिर जो मैंने कौड़ी कौड़ी करके 3 साल में जमा किए हैं मुझे कत्ल करके अपने घर में दफन कर दे, तो किसी को कानों कान खबर न होगी। रुपयों और जान दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। अच्छा, तो हिचकिचाहट का ये सबब था। मुझे अपने ही दिल में चोर की तरह छुपी हुई असल बात बाहर निकाल के देखने में इतनी देर लग गई। उसके पांव रुक गए। पलट के देखा, सपाट चटियल चितकबरी पगडंडी दूर तक सीधी बिछी हुई चली आती थी। यह इसी तरह सीधी सीधी जंगल के पार निकल जाती है। चांदनी में उसके ओझल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर चांदनी ना भी हो तो भी उसके खोए जाने का कतई कोई इम्कान नहीं। 2-2.5 फुट चौड़ी ठोस सख्त ज़मीन जिस पर जूता ठक ठक की आवाज़ देता है, जंगल की नर्म और पिलपिली ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे पाँव पहले जो उसे तलाश करने में नाकाम रहे थे, तो इसकी वजह यह थी कि मैं या तो इसको फलांग जाता था। जब पाँव आगे को फिसला फिसला कर इसका खोज लगाने की कोशिश करता, तो मेरे जूतों के नीचे लगी हुई कीचड़ की वजह से इसकी सख्त ज़मीन और जंगल की ज़मीन में कोई फ़र्क महसूस न कर सका था। मुझे दरअसल ज़मीन पर सख्त एड़ी को ज़ोर ज़ोर से मार के देखना चाहिए था, फ़ौरन पता चल जाता। खैर, वो गलती हो गई। इंसान तजर्बे से सीखता है। अब तो मैं किसी सूरत में पाँव पगडंडी से इधर उधर न रखूँगा। वो जो मैंने बढ़ के दरख्त को ढूंढने की हिमाकत और बेवकूफ़ी की थी, उसको जहालत और बेहूदगी के सिवा और क्या कहा जा सकता है। और ख़ास तौर पर अब जबकि इतनी तकलीफ़ उठा चुका हूँ, इस तरह की हरकत क्यों दोहराऊँगा। उसने अपना रुख एक बार फिर अपने गांव की तरफ मोड़ दिया, गठरी को जमा के कंधे पर रखा और वो चितकबरी पगडंडी पर उड़ता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जल्दी उसकी दाएं तरफ पगडंडी के साथ ही जंगल का वो किता आ गया जहाँ से दरख्त काट दिए गए थे। वो नीम दायरे में एक खुला मैदान था। चांद उसके दाएं कंधे के ऊपर खूब जोर से जगमगा रहा था। बाएं तरफ दरख्तों की कतार जो साथ साथ चल रही थी, उनकी शाखें हाथ पांव ढीले छोड़े बेजान सी लटक रही थीं। कसाई के गोश्त काटने के ब्लॉक पूरे मैदान में फैले बेबस से चमक रहे थे। सियाह आसमान पर अब उजाले का गुबार फैला हुआ था। इतने बहुत से सितारे जो पहले बढ़ बढ़ के रोशन होने की कोशिश कर रहे थे, नूर की धुंध में गायब हो चुके थे। इधर उधर यूं ही चंद एक सितारे मुरझाए मुरझाए नजर आ रहे थे। अब फिर से दोनों तरफ जंगल शुरू हो गया था। थोड़ा फासला और चला तो दाएं तरफ के दरख्तों के पीछे जरा हट के सबसे नुमायां और अलग थलग एक बहुत बड़ा सियाह गुंबद चांदनी में नहाया खड़ा था। तो यहाँ खड़ा है ये, उसने बड़ को देख के नफरत से थूका और मुंह फेर कर सीधा अपने रास्ते पर चलने लगा। एक मुबहम और गैर वाज़ेह ख्याल जो बहुत देर से उसके सर में तैरता फिर रहा था, यकदम उसके जहन के गोशे में तवल्लुद होकर उसके सामने आ गया। मैं इतनी तेज़ी से कहाँ भागा जा रहा हूँ? वहाँ क्या है? मैं अगर अब तक वहाँ पहुँच चुका होता तो क्या होता? अब पहुँच जाऊँगा तो क्या होगा? और अगर कभी भी ना पहुँचूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं। बिल्कुल बढ़ के दरख्त की तलाश वाली बात है। जब मैं इतनी शद्दोमत से उसका खोज लगाने की कोशिश कर रहा था,
اگر مجھے مل جاتا تو کیا ہوتا، جیسے اب مجھے سرے راہ مل گیا ہے تو کیا ہوا ہے، ذرا سا نفرت کا اظہار اور بس۔ اس وقت ذرا سا محبت کا اظہار کر لیتا اور ختم۔ شاید اس کی کھردری کھال کا لمس محسوس کرتا، لیکن اس سے کیا ہوتا، اس کی اصل ہستی کو تو پھر بھی چھو نہ سکتا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ جنگل کا نصف حصہ عبور کر آیا تھا کہ چاندنی اس طرح ختم ہو گئی جیسے کسی نے چاند کا بٹن بند کر دیا ہو۔ بادل چاند پہ چڑھ آیا تھا، لیکن بادل کا ٹکڑا جہاں ختم ہوتا تھا اس کنارے سے روشنی بند توڑ کے ابھی کچھ اجالا کیے ہوئے تھی۔ وہ شاخیں جو پہلے بے جان نظر آ رہی تھیں اب یوں معلوم دیتی تھیں جیسے بے حد و حساب سانپ درختوں سے لٹکے ہوئے بے چینی سے کلبلاتے ہوئے لہرا رہے ہوں۔ تند و تیز ہوا غل مچاتی، سیٹیاں بجاتی، پتوں میں سرسراتی ہوئی جا رہی تھی۔ درخت رہ رہ کے اپنے سر ٹکرا رہے تھے۔ وہ چونکہ گھنے جنگل میں تھا اس لیے بالواسطہ ہوا کی زد میں نہ تھا، لیکن پھر بھی اس کے کپڑے پھڑپھڑا رہے تھے۔ یکدم یہ ہوا اور بادل کہاں سے آ گئے؟ ہوا آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو گئی ہوگی، مجھے اپنے خیالات میں پتہ ہی نہ چل سکا کہ یہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ میں اپنے خیالات کا دھارا ادھر موڑ دیتا تو کیا وہ طوفان کو روک لیتا یا بادل کو چاند پر چھا جانے سے منع کر دیتا؟ اس کے دیکھتے دیکھتے روشنی کی آخری رمق بھی ختم ہو گئی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پچھلے گاؤں کو لوٹ جاؤں، لیکن وہ بھی تو اتنا ہی دور ہوگا جتنا میرا اپنا گاؤں۔ اس نے پگڈنڈی کو احتیاطاً پاؤں کی ایڑی سے بجا کے دیکھا۔ وہ ابھی تک اس کے پاؤں کے نیچے سے کھسکی نہیں تھی۔ جتنی دور تک چل سکتا ہوں چلنا چاہیے۔ اگر پگڈنڈی گم بھی ہو گئی تو میں کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے رات کاٹ لوں گا اور صبح راہ ڈھونڈ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس کی رفتار کم ہو گئی مگر وہ چلتا رہا۔ ہر 15-20 قدم چلنے کے بعد پگڈنڈی کو بجا کے یقین کر لیتا کہ وہ راہ سے بھٹک تو نہیں گیا۔ پگڈنڈی اس کے پاؤں تلے تھی۔ وہ اسی طرح چلتے ہوئے بہت دور نکل گیا تو ایک دم وہ پورے کا پورا جیسے ایک دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کا منہ، ناک، ماتھا، آنکھیں، گردن، سینہ، پیٹ، ٹانگیں سب زخمی ہو گئے۔ وہ چکرا کے گرا اور نیم بے ہوش ہو گیا، جیسے رنگ میں طاقتور مخالف کے تابڑ توڑ گھونسوں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑا ہو۔ وہ کچھ دیر تک پڑا اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر دائیں کوہنی پر زور دے کر ذرا سا اٹھا، چاروں طرف آنکھیں گھمائیں۔ اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ چاند گم، ستارے گم، آسمان گم۔ زمین موجود تھی، ٹھوس اور جامد۔ اس نے زمین کو اپنے ارد گرد ٹٹول کے دیکھا۔ وہ پگڈنڈی پر بیٹھا تھا۔ یہ پگڈنڈی کے اوپر کسی نے کیا بنا دیا؟ کیکر، شیشم جیسے درختوں کی سوکھی ہوئی ٹہنیاں اور موٹی پتلی دوسری لکڑیاں کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر یہاں ڈھیر کا ڈھیر اکٹھی کی ہوں گی۔ میں ان سے ٹکرا گیا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بھیگ گیا۔ خون نہیں، پسینہ ہوگا۔ اس کے سارے بدن پر ہلکا ہلکا پسینہ آیا ہوا تھا۔ اس نے پوری آنکھیں پھاڑ کے ہاتھ کو ان کے نزدیک کر کے دیکھنے کی کوشش کی۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پسینہ ہے یا خون۔ اس کے منہ میں کچھ نمکین نمکین سا بھر گیا۔ پسینہ بھی تو نمکین ہوتا ہے۔ اب کہ اس کی زبان نے خون کا ذائقہ واضح طور پر محسوس کر لیا، اس نے ہونٹ گول کر کے جتنا خون یکبارگی جمع کر سکتا تھا کیا اور زمین پر تھوک دیا۔ پل بھر کے لیے اس کا منہ بالکل صاف ہو گیا۔ دوسرے لمحے پھر خون کا ذائقہ زبان پر دوڑنے لگا۔ سارا چہرہ دکھ رہا تھا، آنکھیں دکھ رہی تھیں، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں کہاں چوٹ آئی اور کتنی شدید آئی۔ شاید آنکھوں کے اندر بھی چوٹ آئی ہو، مگر دبانے سے جس طرح باقی جگہوں پر ایک بوجھل اور سست درد کا احساس ہوتا، اسی طرح وہاں پر بھی ہوتا تھا۔ پگڈنڈی کے اوپر تو لکڑیاں اکٹھی نہیں کی جایا کرتی، وہ تو راستہ ہے جس کو بہرحال صاف رکھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ وہ پگڈنڈی نہیں ہے۔ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے والے مزدوروں نے چل چل کر اس راہ کو پگڈنڈی کی شکل دے دی ہے۔ میں اصل پگڈنڈی سے خدا معلوم کہاں بھٹک کر اس پر چل پڑا ہوں گا۔ یہ بھی اسی کی طرح سخت اور ٹھوس تھی اور میرے جوتے کی ایڑی جتنا جانچ سکتی تھی صحیح جانچتی رہی تھی۔ اس سے زیادہ کی تو وہ اہل نہ تھی۔ اب جس طرف میرا منہ ہے ادھر لکڑیوں کا ڈھیر تھا، یا جدھر میری پیٹھ ہے ادھر لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ وہ چوپایوں کی طرح سامنے چلنے لگا۔ پہلے بازو ہوا میں لہرا کے دیکھ لیتا کہ کچھ ہے تو نہیں، پھر دوسرا قدم اٹھاتا اور بار بار منہ سے خون کی کلیاں تھوکتا۔ ہیں، یہ کیا ہوا؟
एक पगडंडी और उसके ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। मैं 2 पगडंडियों के चौराहे पर खड़ा हूँ। क्या दूसरी पगडंडी वो है जिस पर मैं आया था, या ये वो पगडंडी है? गठरी की तलाश में उसी तरह चौपायों की तरह चलता हुआ वो पगडंडी से उतरकर जंगल की फुसफुसी मिट्टी और छिद्री घास पर आ गया। एक पगडंडी और उसके हाथों तले आई। उनमें कौन सी मेरी पगडंडी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही एक पगडंडी बल पेच खाती हुई जा रही है और बार बार मेरे हाथों और घुटनों तले आ रही है, और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सी पगडंडियाँ हैं। अब एक और पगडंडी आ गई। ये वही एक पगडंडी नहीं हो सकती, ये सब अलग हैं। वो गठरी भूल गया और तेज तेज चलने लगा। एक और पगडंडी आ गई, फिर एक और, फिर एक और। ये सब क्या है? या तो एक को ढूंढना मुहाल था, या अब इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं। उसका सर सामने किसी चीज से टकराया। टटोल के देखा, जंगल में जमा की हुई लकड़ियों का ढेर था। वो उठ के खड़ा हो गया। ये वही पहला ढेर था या कोई और? दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही तरह की तीखी तीखी लकड़ियों की बुलंदोबाला दीवारें। अगर ये दूसरा ढेर है तो ये पहले की दाएं तरफ है या बाएं तरफ? मुमकिन है उसके पीछे हो, या उससे पहले भी हो सकता है, या पगडंडियों की तरह बहुत से ढेर हों। मैं किस समत से यहाँ आया था? गालिबन दाएं तरफ से आया हूँ। वो उधर मुड़ा। उसका बदन कांप रहा था। चेहरा और कपड़े खून में लथपथ थे। सांस फूली हुई थी। चंद कदम चला तो सोचा नहीं। जिधर मेरी पीठ है मैं उधर से आया था। उधर लपका। नहीं नहीं, मैं बाएं तरफ से आया था। वो एकदम उधर पलट पड़ा। उसका माथा जमीन की तरफ झुकते हुए एक टहने से बहुत जोर से टकराया। धपक की आवाज़ उसके सर में गूंज उठी। सदमे से संभलते हुए जहन ने पहला सवाल ये किया, मैं कहाँ फंस गया हूँ? जंगल ने मुझे घेरे में ले लिया है। उसके कहकहों की चीखों से कान फट रहे हैं। ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिधर मुंह था उसी तरफ भाग पड़ा। वो दरख्तों से टकरा टकरा के इस तरह उछल रहा था जैसे खिलाड़ी दायरा बना के फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हों, लेकिन उसे दायरे से बाहर ना निकलने देते हों। आखिर वो गिर गया। सुबह को जिस वक्त सूरज निकला तो काली सियाह चूंटियों ने उसका सारा बदन ढांपा हुआ था। कुछ पहचान मुमकिन न थी कि रात के अंधेरे में कौन मारा गया।